यूएसए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली। तो अभी कल ही मेरे से एक हमारा एक एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस है साजन जी, वो पूछ रहा था कि सर आप इतनी कंट्रीज में घूमे हैं, आपको सबसे अच्छी कंट्री कौन सी लगी? मैंने उसको एक लाइन में जवाब दिया और मैंने कंट्री का नाम नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसको कहा सारे जहां से अच्छा। आपने हेल्थ केयर ही क्यों सिलेक्ट किया? मैं जब 8th क्लास में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। एंड मैं अभी ऑल्दो बिजनेस कर रहा हूँ, आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन कहो या मैनेजमेंट कहो या एंटरप्रेन्योर कहो, तो मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसमें मैंने अलग अलग बिजनेसेस किए। कॉलेज में है और जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या गाइडेंस दोगे आप? इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो काफ़ी मैच्योर हो गया है अब, काफ़ी मैच्योर हो गया है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी। आपने जितने भी लोगों को मेंटर्स दिया है, क्या आपने उनमें क्या अच्छाइयाँ देखी एक तरीके से, क्या तो वो एक कॉमन? मैं जब भी किसी भी स्टार्टअप को या फाउंडर को मिलता हूँ या मेंटोर करता हूँ, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि यार ये बंदा कितना पैशनेट। एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है स्टार्टअप में, फेल फास्ट, फेल अर्ली, fail cheap. Hello and welcome everyone in our new video of podcast The Founder Suite. Today we are with a special guest Dr. Naveen Nishal, who is a visionary founder, entrepreneur, also an investor. सर ने मोर देन 4 कंपनियां इन्वेस्ट मतलब फाउंड की है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोर देन 10 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है. सो जो मेजर कंपनियां हैं सर की, दैट इंक्लूडिंग अनकवर वेलनेस, मेडो, Saizen Hospitals, Voice of Healthcare, Voice of Healthcare incubator for the in the healthcare technology. Apart from that, sir did the MBBS from the Bengal University and MD in internal medicine. सर का एक्सपीरियंस रहा है द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स का. अपार्ट फ्रॉम द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, sir also went to the University of Heidelberg. So that's all about sir. So welcome sir and over to you. I will quickly introduce myself. I am Dr. Naveen Nishal. I am a doctor by training. I did my MBBS from North Bengal Medical College, Siliguri, West Bengal, and then I did my MD in internal medicine from Government Medical College, Patiala, in 2004. Post that, I came to Delhi. In Delhi, I worked for Government of Delhi in a hospital in periphery of Delhi, Sanjay Gandhi Memorial Hospital. As a senior resident, I spent 3 years working in that government hospital, and I had very rich experience working in that hospital. I used to see on a daily basis around 100 patients in OPD during my OPD days. So that was really, uh, I mean, enriching experience. Post that, I started a healthcare startup, basically a hospital chain, and I built 10 hospitals, especially for tier 2, tier 3 cities of India, because I come from tier 2, tier 3 background, or even to be more precise, I come from a village background. I was born and brought up in a small village of Haryana in district Karnal, and I know that area very well, and that's why I thought of working in those areas, and I built super specialty hospitals in these towns like Sonipat, Panipat, Karnal, Kurukshetra, Kathal. So I built these hospitals with the idea that these towns, they don't have super specialty services, or you can say emergency services where time is of great essence, great importance. So even today, if you see, lot of patients from tier 2, tier 3 towns, they are being shifted to bigger towns, bigger cities like Delhi, Lucknow, Chennai, Kolkata, I mean from nearby towns. And
especially patients with neurotrauma, heart attack, because we don't have facilities in these smaller towns. And I thought of building hospitals so that we don't need to shift these patients to larger cities, because most of the patients or half of the patients, they die on the way because of lack of treatment. So that is my initial journey. uh, I'm open for more questions from your side. थैंक यू। मैं दो बार थैंक यू बोलना चाहूँगा आगे। एक बार कनेक्ट होने के लिए, दूसरा हेल्थ केयर में काम करने के लिए। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, मतलब पुअर विलेज। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कई कई होते हैं कस्बे जो काफ़ी डेवलप्ड होते हैं कि नियर बाई सिटी, नियर बाई यानी बात कर सकते हैं ब्लॉक या फिर तहसील के। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? लाइक पहले आप हरियाणा में थे, देन आप बेंगलोर में गए, फिर आप पंजाब में आए, देन आप दिल्ली में गए, फिर यूएस एंड फॉरेन कंट्री में भी गए। तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है लोकेशन वाइज? तो अभी मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ, बहुत सारी कंट्रीज में मैं विजिट किया हूँ। मैं फ्रांस, यूएसए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली। तो अभी कल ही मेरे से एक हमारा एक एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस है, साजन जी, वो पूछ रहा था कि सर आप इतनी कंट्रीज में घूमे हैं, आपको सबसे अच्छी कंट्री कौन सी लगी? मैंने उसको एक लाइन में जवाब दिया, और मैंने कंट्री का नाम नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसको कहा सारे जहां से अच्छा। आई थिंक सब लोग समझ गए। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे देश से, मेरी कंट्री से अच्छा कुछ भी नहीं है। सर वी वांट टू नो वाला हाउ एंड व्हाई। तो हाँ, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं पैदा हुआ हरियाणा में। उसके बाद मैं अपनी जो एमबीबीएस करने चला गया वेस्ट बंगाल। तो जब मैं वेस्ट बंगाल गया तो वहां पे नई भाषा, नए लोग, नया कल्चर। तो मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके वेस्ट बंगाल पहुंचा। मेरे को लगा कि शायद यहाँ पे भी लोग वैसे ही होंगे, बट जब मैंने उनके कल्चर को देखा, समझा, तो आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि कल्चरली वेस्ट बंगाल कितना रिच है। और मैंने वहां पे जो फेस्टिवल्स मनाए, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लगा कि ये इंडिया में ही कहाँ एक हरियाणा है और कहाँ वेस्ट बंगाल है। और फिर उसके बाद मैं पंजाब गया। मैं पंजाबी हूं वैसे, तो मुझे लगता था कि मुझे पंजाबी आती है, मैं तो पंजाबी हूं, ऑल्दो मैं हरियाणा में रहता था। जब मैं पंजाब गया तो मुझे लगा यार मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती है। तो मैं जब वेस्ट बंगाल गया तो मैंने बंगाली सीखी। जब मैं पंजाब गया तो मैंने अपनी पंजाबी को पॉलिश किया। और वहां का जो कल्चर है, वहां पे जो पंजाब का एक कहेंगे कि हम एक जिंदा दिली है, और एक जो खुलापन है, और जो वहां का खान पान है, और जो लोगों की एक सोच है, वो एक टोटली डिफरेंट है। और फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली टोटली डिफरेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी कंट्री में अगर आप अलग अलग जगह रहते हो, तो आप एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल आप डेवलप होते हो। ये मेरा एक बिलीफ है। Okay, so that was nice observation from the different states location। मतलब काफी काफी लोगों का मन होता है, इंडिया इतनी डाइवर्स कंपनी है कि एक बार तो दुर्गा पूजा अटेंड करनी है, हाँ। या फिर एक बार तो जो दिवाली है, कई लोग हैं जो साउथ को बात करते हैं, वो लोग हाँ। सोचते हैं कि दिवाली है, मथुरा में होली का सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू नो आपने हेल्थ केयर ही क्यों सेलेक्ट किया? तो जब मैं स्कूल में था, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तो मैं गांव में पैदा हुआ, और मैंने वहां पर देखा कि लोग कैसे रह रहे हैं, और अ, कैसे वो डेली उनका एक स्ट्रगल चल रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने देखा कि अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अगर कोई भी एक, जब आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कहते हो, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे लॉयर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइफ में अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, समाज के लिए और अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, तो मुझे लगा कि डॉक्टर बनना या हेल्थ केयर से बड़ा इम्पैक्ट कुछ नहीं हो सकता है। और
इवन जब 8th क्लास में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, एंड थैंकफुली मैं एक डॉक्टर बना उसके बाद। ओके, मतलब आपका काफी लॉन्ग टर्म प्लान चलता है कि मतलब कि ऐसे हम भी खुद ही सोचते हैं कि 11th में हम ये करेंगे, फिर 12th में ये करेंगे, तो आपका ऐसा कभी नहीं लगा कि एक बात कि आपको इंडस्ट्री स्विच कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ लगा? या आपको हाँ, मुझे मुझे बहुत बार बोला गया कि आप डिफरेंट इंडस्ट्री चूज करो, इधर जाओ उधर जाओ। तो मैंने ये अपना एक एम तय किया हुआ था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और मैं उसी की ही तैयारी कर रहा था, और लकीली वो मुझे मिल गया। ओके, नेक्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नेक्स्ट मैं सोच रहा था कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन रखने का। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन हार्वर्ड एंड व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स लाइक स्टूडेंट्स आल्सो एंटरप्रेन्योर्स? तो मैं अभी ऑल्दो बिजनेस कर रहा हूँ, आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन कहो या मैनेजमेंट कहो, या एंटरप्रेन्योर कहो। तो मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसमें मैंने अलग अलग बिजनेसेस किए, और मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, एमबीए की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है कि मैं जैसे यूजली लोग क्या करते हैं कि पहले एक डिग्री करते हैं, अंडर ग्रेड करते हैं और फिर एमबीए करते हैं। तो डॉक्टर्स में यूजली एमबीए नहीं होती है, तो मेरी कोई एमबीए वाली ट्रेनिंग नहीं है। तो जब मैं अपना फर्स्ट स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था, सिग्नस हॉस्पिटल्स, तब मुझे नीड हुई, क्योंकि तब मैं फंड रेज भी कर रहा था, ऑपरेशन भी कर रहा था, और बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स में भी मैं इन्वॉल्व था। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। तो मैंने कुछ कुछ प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम, एग्जेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन किए। तो उसमें एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी मैं गया। तो मेरा ये मानना है कि आप जब आप ऐसे कॉलेज में जाते हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आप जब जाते हैं, तो आप सिर्फ उनके करिकुलम से या प्रोफेसर से लर्न नहीं करने जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है इस लर्निंग का, वो आपका पीयर ग्रुप है, कि आप किन लोगों के साथ वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। आप जो अपने प्रोफेसर से या अपने टीचर से जो लर्न करते हैं, उससे ज्यादा आप अपने पीयर ग्रुप से, जो आपके बैच में लोग होते हैं, उनसे लर्न करते हैं। जब आप उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि वो कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, और उनके साथ अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, जब वो अपनी बातें शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना है और हमें अपने डिफरेंट पीयर ग्रुप से लर्न करना है, तो ऐसे प्रोग्राम्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जरूरी है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाओ, आप इंडिया के किसी कॉलेज में चले जाओ या यूरोप के किसी कॉलेज में चले जाओ, बट आई फील कि जब आप जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ लर्न करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो कॉलेज में है और जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या गाइडेंस दोगे आप एक तरीके से यहाँ पॉडकास्ट के थ्रू? इंडिया में जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है अभी, और इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो काफी मेच्योर हो गया है अब, काफी मेच्योर हो गया है, और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। आप कोई भी एक आइडिया सोचिए, कोई भी एक प्रॉब्लम सोचिए। बेसिकली हम स्टार्टअप किस पे बिल्ड करते हैं? किसी ना किसी एक प्रॉब्लम पे बिल्ड करते हैं, कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे इनोवेटिवली सॉल्व कर रहे हैं, कैसे उसको कोई और नहीं कर रहा, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, एंड you should start thinking about problems and how you are going to solve and how you are different from others and what innovation you are bringing. तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना काम पहले से ही शुरू कर दें। सर, आपने बताया कि मतलब लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई लोग सोचते हैं कि पहले जॉब कर लेते हैं, थोड़े से पैसे कमा लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं उस पे सेविंग से। तो इसमें थोड़ा शॉर्ट आंसर है आपका। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको जॉब करनी है या आपको स्टार्टअप करना है। अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब वाली रास्ता पकड़ लीजिए। इंडिया में अगर आप काम करना चाहते हैं
तो जॉब्स की कमी नहीं है, स्पेशली अगर आप काम करना चाहते हैं। और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मैं हर एंटरप्रेन्योर को ये कहता हूं कि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। जैसे ही आप जॉब में जाओगे आपको हर महीने 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 मिलेंगे। आप वो सैलरी कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। सैलरी इज एन एडिक्शन। आई डोंट नो, किसी एक बंदे ने कहा है कि सैलरी जो है वो एक एडिक्शन है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जॉब्स में हैं और वो ड्रीम कर रहे हैं कि यार मैं एक दिन स्टार्टअप बनाऊंगा। वो ड्रीम कर रहे हैं कि मैं एक दिन स्टार्टअप बनाऊंगा, और उनकी जिंदगी 1 महीना, 6 महीना, साल, 5 साल, 10 साल निकल जाती है, लेकिन वो ड्रीम ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सैलरी को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जितनी सैलरी उतने आपके खर्चे, आपको आदत लग जाती है। आपको स्टार्टअप तब करना चाहिए जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। that is the right time when you have nothing to lose. I think you should start early. You shouldn't wait. This is my opinion. अगर आपने जॉब पकड़ ली फिर वो एक ट्रैप है, वो आप वहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। That is my opinion. सो व्हाट डू यू से अबाउट अस, क्योंकि हमने भी मतलब हम तीनों को फाउंडर ने कॉलेज के साथ ही स्टार्ट किया था। तो आई लाइक द वे यू गाइज आर वर्किंग, स्पेशली जो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ईज एक्सपेंस। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है एंड आई बिलीव कि आपने एक इनोवेटिव रूट लिया है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एंड आई एम हैप्पी अबाउट यू गाइस कि यू आर बिल्डिंग दिस, एंड आई सी very bright future for ease expense because this is the need of the hour. सो And I really like your product. थैंक यू, थैंक यू। सो आई हैव टू क्वेश्चंस। सो आपका जो बेसिक एक ओवरव्यू है यहाँ पर, तो आपने कई लोगों को मेंटरशिप या कोच किया है। सो तो बिफोर मतलब बिफोर कस्टमर यू आर अ मेंटर मतलब फॉर अस, एंड तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी है लोगों में, नॉट फॉर मतलब हमें ऐसा नहीं कि हमें बाकी के जो नई जनरेशन है या जो आपने कोच किया है मेंटर, तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन किया है, क्या पॉजिटिव रहा है और क्या नेगेटिव रहा है? तो मैं जब भी किसी भी स्टार्टअप को या फाउंडर को मिलता हूँ या मेंटोर करता हूँ, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि यार ये बंदा कितना पैशनेट है। भाई ये प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार, कई बार हमें लगता है यार ये तो ना प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकता। कई बार हमें लगता है यार, लेकिन ये बंदा लगा हुआ है। लेकिन जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं उनको मिलता हूँ तो मेरे को लगता है नहीं यार, ये इनका जो पैशन है ना, ये प्रॉब्लम ये अपनी सॉल्व कर रहे हैं। जो ये प्रॉब्लम को लेके लगे हुए थे उसको ये सॉल्व कर रहे हैं। तो दैट इज वन थिंग आई लाइक अबाउट यू गाइस, दैट यू आर वेरी पैशनेट। एंड सेकंड थिंग, जब मैंने आपका सोल्यूशन यूज करना शुरू किया हमारी कंपनीज में, तो मैंने देखा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, अगर कभी भी प्रॉब्लम आई है रात को 11 बजे, 2 बजे, यू गाइस वर अप, यार ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जो आपका एक जो आप लोगों का पैशन है टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू बिल्ड समथिंग इनोवेटिवली, that is what I like about you guys and your start. So my question regarding the जनरल ओवरव्यू क्या है, तो नॉट फॉर अस, आपने जितने भी लोगों को मेंटर दिया है कि आपने उनमें क्या अच्छाइयाँ देखी एक तरीके से, क्या तो वो एक कॉमन अपार्ट फ्रॉम द कि पैशनेट। तो मैं जब भी कोई फाउंडर को या कोई भी स्टार्टअप को देखता हूं तो मैं 2-3 चीजें देखता हूं, या जब मैं इन्वेस्ट भी करता हूं तो मैं 2-3 चीजें देखता हूं। पहला मैं देखता हूं कि यार द प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग, इज इट अ यूनिक प्रॉब्लम, or it's, even if it is not a unique problem, but is this a real problem? Number one. Number two, are they making some difference? Are they tackling this problem differently or innovatively? That is second thing. And थर्ड थिंग ये देखता हूँ कि यार ये इस प्रॉब्लम, जो भी इस बिजनेस कर रहे हैं, इसका स्केल है या नहीं है। तो these are the things I always look for whenever I invest in any startup. Okay, so what one advice to startup?
कि उनको जो फंड है वो रेज करना चाहिए। कई कई स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिट में चल रहा है, कई लॉस में चल रहा है, तो उनके लिए एक बेसिक आपकी जो कॉमन एडवाइस रहेगी वो क्या रहेगी? फॉर फंड रेजिंग, हाँ। तो फंड रेजिंग के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी कोई स्टार्टअप आता है तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कम से कम 11-12 बार फंड रेज किया है ओह, इन डिफरेंट कंपनीज, एंड मैं ये कहूंगा कि दिस इज नॉट लक। फंड रेजिंग इज अ वेरी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. यू हैव टू बी पेशेंट वाइल रेजिंग फंड, और ऐसा भी नहीं है कि आप पहले इन्वेस्टर से मिलोगे वो आपको फंड दे देगा. मैं ये कहता हूं कि फंड, आई मीन, जो रेजिंग फंड है ना, फंड रेज करना, ये एक मैच मेकिंग है. आप 10, 15, 20 इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, उसमें से एक इन्वेस्टर ऐसा होगा जो आपके साथ ऑन बोर्ड होगा, वो कहेगा यस, ये प्रॉब्लम, ये बंदे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी. तो वो अपॉर्चुनिटी हर इन्वेस्टर को अच्छी नहीं लगेगी. इट्स अ मैच मेकिंग. आपको एक इन्वेस्टर को ढूंढने के लिए कम से कम 15, 20, 50 इन्वेस्टर से मिलना पड़ेगा, तब जाके आपको वो इन्वेस्टर मिलेगा जो आपके आइडिया में, जो आपकी टीम में बिलीव करेगा. ओके, सो अगर हम बात करें टीम की बात करें तो मतलब व्हाट योर सजेशन टू हाउ टू मैनेज टीम एंड हाउ यू मैनेज टीम? तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम टीम को मैनेज करते हैं ना, तो टीम को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यू हैव टू बी, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी ट्रू टू योर टीम. यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट टू योर टीम. अगर आप ट्रांसपेरेंट है अपनी टीम के साथ, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है. दैट इज वन. सेकेंड, यू शुड नो कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते. जो आप नहीं कर सकते हैं वो आप मत करो, वो आप डेलीगेट कर दो. और डेलीगेट का भी एक रूल है कि डेलीगेट का ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को कुछ काम दिया और आपको वापस मिल जाएगा. ऐसा कभी नहीं होता है. यू हैव टू फॉलो अप. डेलीगेट, फॉलो, डेलीगेट, फॉलो. आई थिंक इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं है. और सर क्वालिटी एम्प्लॉय कैसे हायर करें, मतलब वो जो एम्प्लॉय हायरिंग प्रोसेस है उसको कैसे स्मूथ बनना है और क्वालिटी पीपल्स हम कैसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हमारे पास एक या दो इंटरव्यू होते हैं, उसमें क्वालिटी देखना, मेंटलिटी देखना बंदे की, उसको कैसे करें? तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट, क्वालिटी से भी इंपॉर्टेंट, आपको जब किसी को हम हायर करते हैं, जब मैं किसी को हायर करता हूं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो एम्प्लॉय है, इसका पोटेंशियल कितना है. क्या ये इस लेवल से इस लेवल तक जा सकता है अगर इसको ट्रेन किया जाए. दैट इज व्हाट आई लुक फॉर इन एन एम्प्लॉय. अगर आप क्वालिटी रिसोर्स लेके आओगे, मैं यूजली क्या करता हूं कि मैं अपने हिसाब से उनको ट्रेन करता हूं. एंड आई ऑलवेज लुक फॉर पोटेंशियल, कि अगर किसी में मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन हैज पोटेंशियल, ग्रो करने का पोटेंशियल है अगर, तो आई ऑलवेज लुक फॉर दोज पीपल एंड आई मोल्ड दोज पीपल अकॉर्डिंग टू माई नीड. तो बहुत बार ये भी होता है कि आप क्वालिटी लोगों को ले आते हैं, बट वो ना तो उनके अंदर कई बार पोटेंशियल होता है आगे ग्रो करने का, और ना ही वो फ्लेक्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ स्टार्टअप. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको देखें कि उनका पोटेंशियल क्या है. नंबर एक और इसमें है कि हमें ये भी देखना है कि क्या वो आपके कल्चर में फिट बैठेंगे. बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके कल्चर में फिट ही नहीं बैठते हैं. तो कल्चरल फिटमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया while you are hiring employees. और अगर हम बात करें जेएनजी की, इधर भी ज़्यादा बात हो रही है, तो आप मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेएनजी? और ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पर्सनली आई एम अगेंस्ट वर्क फ्रॉम होम कल्चर. पर्सनली स्पीकिंग, क्या आप एक डॉक्टर को, एक नर्स को,
या एक सर्जन को कह सकते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करो? कह सकते हैं? नहीं। अगर सारे डॉक्टर्स वर्क फ्रॉम होम करने लग जाएं तो क्या हमारा हॉस्पिटल चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्या आप पुलिस को कह सकते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो? क्या आप आर्मी को कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम कर लो? आप सुबह 5 बजे उठ के मत जाओ। आई थिंक वी आर मेकिंग our upcoming generations lazy. I'm not against work from home culture, but अभी इंडिया में हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां पे आपकी लाइफ सिक्योर है। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको एम्प्लॉयमेंट भत्ता मिल रहा है। आपको अगर बीमार है तो आपको हॉस्पिटल में फ्री सर्विस मिल रही है। दैट इज नॉट द केस विद इंडिया। हमारे यहाँ अभी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हमारे यहाँ लोगों को काम की जरूरत भी है, सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए लोगों को। तो मैं ये कहूँगा कि आई एम नॉट अगेंस्ट वर्क फ्रॉम होम कल्चर, बट आई बिलीव दैट अभी वो हमारा टाइम नहीं आया है कि हम घर से बैठ के काम करें। अभी हमारा टाइम काम करने का टाइम है। जितना हम काम करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी सर, ये मेरा पर्सनल भी वो रहा है कि हम खुद ही हम 3 को फाउंडर्स हैं, मैं, महेंद्र एंड कौस्तुभ। तो हमारा भी ये रहा है कि हम लोग ट्राई करते हैं ऑफिस में ही काम करने का, मतलब घर पे जाके नहीं, शाम को भी नहीं, और ट्राई करेंगे थोड़ा लेट रुकने का, क्योंकि एक माहौल मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल और घर पे रहता है कि ठीक है थोड़ी देर में कर लेते हैं, थोड़ी एक नींद मार लेते हैं, चाय पी लेते हैं, या कभी कभी मम्मी ने काम दे दिया या भैया ने काम दे दिया, तो वहां पे थोड़ा काम को लेके थोड़ा सीरियसनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। जब आप ऑफिस आते हैं तो आपको पता है मुझे काम करना है। हाँ, वो कल्चर एक हाँ, तरीके जिसे हम बोलते हैं आप तैयार होके आते हैं, हाँ। आप नहा धो के आते हैं, आप तैयार होके आते हैं। और लेकिन जब आप घर पे बैठे हुए हैं, आप ऐसे ही उठ के काम करने लग जाएंगे, तो आपका वो मेंटल स्टेट अभी घर में ही है, कंफर्ट जोन में है, आप फोकस नहीं कर रहे हैं अभी भी। तो आई बिलीव कि अभी वी आर नॉट देयर कि हम वर्क फ्रॉम होम करें। आई बिलीव वर्क फ्रॉम होम इज वर्क फॉर होम। so come to the entrepreneurship, so मतलब what do you think about plan B? Plan B in startups for an entrepreneur. entrepreneurs I think I am against about plan B. अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, if you believe in your idea, if you are passionate enough, if you are solving the right problem, तो प्लान बी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन लाएगा कि यार अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका सिर्फ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब कुछ आपका स्टार्टअप होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। how to validate, क्योंकि आपने बोला प्लान है, प्लान बी, प्लान सी, आपका एक ही होना चाहिए। तो एक ये होता है ना कि जब हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन लगाए, तो हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन, हाउ टू वैलिडेट गुड क्वेश्चन। देखो, मैंने जैसे पहले कहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में काफी मैच्योर हो चुका है, और जब भी आप कोई आइडिया शुरू कर रहे हैं, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ विदाउट स्पेंडिंग मच मनी। आप यू गाइज आर टेक पीपल, टेक गाइज। आप एक छोटा सा एक कुछ भी एक पायलट बनाओ और फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर्स, उनमें टेस्ट करो, सर्वे करो, उनसे पूछो कि क्या ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू सॉल्व लाइक दिस। तो जब आप एक छोटा प्रोटोटाइप बनाएंगे या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाएंगे और आसपास लोगों से पूछेंगे और लोगों से गाइडेंस लेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि यस, आपको अपने आप ही लोग गाइड कर देंगे कि ये आपने करना है या नहीं करना है। एंड व्हेन यू गेट वैलिडेशन, देन यू शुड जंप इनटू इट। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा वी ऑल 3 को फाउंडर्स हमने अराउंड 2000 लोगों से बात की पहले साल में, क्योंकि जीएफएम में गए हम लोग, मतलब
ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, पर हम लोग बाकी में काफी लोगों की आपसे भी किसी दूसरे सोर्स के थ्रू कनेक्ट हुए, तो हमने ये देखा कि हम जो करते हैं मतलब स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ही एक हाँ एंड गोल होता है, क्योंकि करेक्ट हमने सोचा था कि वी इंटीग्रेट द एपीआई, मतलब अवर प्लेटफॉर्म जो है ना वो दूसरी डायरेक्शन में था, तो वो एक अलग पार्ट ऑफ डिस्कशन है। सो हम पिवट होके इस डायरेक्शन में, इस कंसेप्ट में, मे बी जैसे जैसे हम लोगों की नीड होगी उस तरह से हम पिवट करें। करेक्ट करेक्ट। तो ये आपके साथ नहीं है, हम्म, ये मोस्टली 90% स्टार्टअप के साथ होता है। बहुत सारे स्टार्टअप एक आइडिया पे फंडिंग उठाते हैं, लेकिन जब वो उसको करते हैं, थोड़ा सा लार्जर ऑडियंस में जाते हैं, तो उनको लगता है दिस इज नॉट वर्थ डूइंग, तो वो पिवट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं और एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी जो ओरिजिनल आइडिया था उससे डिफरेंट बिजनेस बिल्ड किया। तो वो आप जब ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, देन यू गेट टू नो एंड देन यू चेंज, So, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज टोटली डिफरेंट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने एक ओके क्रेडिट, आपने नाम सुना है? ओके क्रेडिट वीसी फंडेड एक कंपनी। यस यस। हाँ, तो उनके जो फाउंडर्स हैं, हाँ, तो उनकी एक सब्सिडरी थी, कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है एक्चुअली, अभी उन्होंने बंद किया, उसको क्लोज कर दिया, शट डाउन कर दिया है। तो उनका एक क्वेश्चन था सोशल मीडिया पे कि हाउ टू डिसाइड कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कब क्लोज करना है, क्योंकि स्टार्ट करने का तो आपने बता दिया, उसको क्लोज करने का भी रहता है कि कहीं ऐसे तो नहीं हम बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, हमें 5 साल लेना चाहिए, 10 साल लेना चाहिए। सो हाउ टू डिसाइड, दैट वाज द क्वेश्चन ऑन सोशल मीडिया। तो एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है स्टार्टअप में, फेल फास्ट, फेल अर्ली, फेल चीप। अगर आपको लग रहा है कि आपका आइडिया नहीं फ्लाई होगा या नहीं चलेगा, उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट कैरी अलोंग उसको 1 साल 2 साल, बिकॉज आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टाइम। When you get to know that this is not going to work, that is the time you should start thinking कि how to shut down this business, how fast, how cheap, and how early you should shut down your business. So I would go with that: fail fast, fail early, fail cheap. Okay. So what do you closing this session? So what is your one advice to aspiring entrepreneurs? तो एंटरप्रेन्योर्स को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टेज पे हैं, चाहे आप शुरू कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं, मिड में हैं, टॉप पे है, जहां भी हैं, आपको इनोवेट करना है, अपने आप को अपडेट करना है और आपको टाइम के साथ चलना है। अगर आज एक नया एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है या डीपसीक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, यू हैव टू बी विथ टाइम। अगर आप टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो यू हैव टू कीप इनोवेटिंग ऑल द टाइम if you want to be in the race, if you want to stay in the race, you have to keep innovating. That is the only advice I want to give to you. Accept the things and failure and acceptance. Exact, yes. ओके, सो थैंक यू सर, मतलब आपने काफ़ी चीज़ें मतलब हमारे भी काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन थे वो काफ़ी सॉल्व हो गए इसमें, कि किस तरह से हम स्टार्टअप को इवेल्यूट करना चाहिए, पिवेट किस तरह काम करता है, और इसके अलावा आपकी जर्नी के बारे में भी, कल्चर, आपने कई सारी कंट्री घूमी है, मतलब रिसेंटली मुझे लगता है ताइवान था आपका, तो मैंने वो काफ़ी फॉलो किया आपकी जर्नी को देखे। सो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब भी हम कभी नहीं गए, हम बेंगलोर के बारे में कई खराबियाँ भी सुनिए, अच्छाइयाँ सुनिए, आपके मुंह से अच्छाइयाँ सुनिए, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वहाँ से। तो बेंगलोर, पंजाब, दिल्ली और भी कई कंट्री, मतलब ये तो स्टेट्स हो गए या लोकेशन हो गई, कंट्रियों का आपका सफ़र रहा है, मतलब, और ये काफ़ी हम चाहेंगे कि दोबारा आपके साथ शूट करें और कनेक्टेड रहें, जिससे कि लोगों की जो क्वेरी होती है कमेंट्स में या कहीं पर भी, वो एक सॉल्व हो और उनको एक क्लियर मैसेजिंग मिले, उनके आंसर्स मिले। सो थैंक यू सर, मतलब काफ़ी नॉलेज। Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you.